پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ نا پرینک کر رہے ہیں یا پھر ان کو ویوز نہیں آ رہے، ویوز لے رہے ہیں. اشتہاری بھی ہیں 10-10 15-15 ان پہ پرچے ہیں 302 کے. سٹارٹ میں یہ گینگ کیا کرتا تھا، چھوٹی موٹی وارداتیں کرتا تھا. ان کے جو والد صاحب ہیں وہ بھی گینگ کا حصہ ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے اس گاڑی کو جلا دیتے ہیں پیٹرول چھڑک کے، وہاں پہ فائرنگ کرتے ہیں، پھر سامنے کھڑے ہو کے ویڈیو بناتے ہیں. وہ ویڈیو میرے پاس پڑی، آپ لگانا چاہیں تو. پھر وہاں پہ یہ ٹک ٹاک وغیرہ بناتے ہیں اور اس ایریے کے اندر نا یہ لوگ اپنا دعویٰ مزید مضبوط کر دیتے ہیں. ویلا منڈا کے ہاتھ سے بھی نکل کے آگے جا چکے، اب یہ داروں کے پاس آ گیا. اب وہ چائے بھی، وہ بتا دینے بھی جائے وہ نہیں دے سکتا، کیونکہ اب مریم نواز صاحبہ نے خود اس پہ ایکشن لیا ہے. بٹ کا بھی یہی کنٹینٹ ہے. اب رجب بٹ بھی یہ چیزیں دکھاتا ہے، اسی وجہ سے تو آج ملک سے باہر ہے. ڈکی کیوں ہے؟ ڈکی نے نیا گھر لیا، ریڈار میں آ گیا. سسٹرول جی نے نیا گھر لیا، ریڈار میں آ گیا. ذوالقرنین، کنول، یہ لوگ نیا گھر انہوں نے لیا، اب یہ بھی ریڈار میں آ چکے ہیں. پتہ چل چکا ہے سب کو کہ یہ جو یوٹیوبرز ہیں پیسے کماتے ہیں ٹھیک ٹھاک، اب ان پہ اس لیے آٹ. السلام علیکم ناظرین، میرا نام شعیب صادق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پوسٹ پاکستان. گزشتہ روز ایک خبر بریک کی عثمان صاحب نے، جس میں انہوں نے کہا کہ ویلا منڈا کے جو والد صاحب ہیں ان سے کروڑوں روپے مانگے گئے اور اسی کیس میں ہی 4 گرفتاریاں ہو چکی ہیں. یہ سب کچھ ان کو کیسے پتا چلا اور کیا ان کے سورسز تھے، میں ان سے پوچھوں گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر، یہ آپ نے کیا ایسی بات کر دی جو ویلا مچا دیا آپ نے؟ دیکھیں، بات یہ کہ جیسے یہ اغوا ہوتے ہیں اس کے بعد سے ڈیفرنٹ قسم کی باتیں ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ نا پرینک کر رہے ہیں یا پھر ان کو ویوز نہیں آ رہے، ویوز لے رہے ہیں. لیکن اس ٹائم پہ سی سی ٹی وی فوٹیج تھی، پھر اس کے بعد ڈی پی او صاحب کی انوالومنٹ تھی، ساری چیزیں ظاہر کر رہی تھی کہ یہ چیز اوریجنل ہے. اگر فیک ہوتی تو پولیس پہلے دن ہی سی سی ڈی پہلے دن ہی اس کی کٹی کٹا نکال لیتی. اب ہوتا کیا ہے، اب اس کو گرفتار کس نے کیا؟ اب اس سائڈ پہ اگر وہاں پہ دیکھا جائے تو سب سے جو اسٹرانگ وہاں پہ جو گینگ ہے، اقراری بولا اس کو بولتے ہیں. اب یہ اقراری بولا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ٹک ٹاک بھی یوز کر رہے ہیں، فیس بک بھی یوز کر رہے ہیں، اور یہ لوگ نا ویڈیوز بھی بناتے ہیں، اشتہاری بھی ہیں 10-10 15-15 ان پہ پرچے ہیں 302 کے. سٹارٹ میں یہ گینگ کیا کرتا تھا، چھوٹی موٹی وارداتیں کرتا تھا. ان کے جو والد صاحب ہیں وہ بھی گینگ کا حصہ تھے. پھر کسی چیز میں وہ بھی مارے گئے، لوگوں کے ساتھ لڑائی ہوئی. یہ اقراری بولا کہ والد صاحب، یہ والد صاحب تھے، چھوٹے موٹے بدماش تھے. پھر کیا ہوتا ہے، ان کا ایک بھائی ہوتا ہے، وہ بھی اسی طرح ہی مارا جاتا ہے. اس کے بعد اب یہ 3 بھائی رہ گئے ہیں، جس میں یہ جو اقرار ہے سب سے بڑا جو بھائی ہے، یہ بڑا خطرناک بندہ ہے. یہ کیا کرتا ہے، لوگوں سے بھتہ مانگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ سپاری لینی اس نے سٹارٹ کر دی، لوگوں سے پیسے وغیرہ لیتا تھا، بندے بھی مار دیتا تھا. پھر یہ کیا کرتا ہے، وہاں پہ ایک بندے سے 20 لاکھ روپے مانگتا ہے. جب وہ بندہ محمد یعقوب اس کا نام ہے، جب وہ بندہ ان کو پیسے نہیں دیتا، وہ لوگ پولیس کے پاس جاتے ہیں، ایف آئی آر کرواتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک دن وہ اپنے ڈرائیور کو گاڑی دیتے، جاؤ سروس کرا. یہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ گاڑی سروس اسٹیشن پہ آئی ہے، ڈالا. یہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے اس گاڑی کو جلا دیتے ہیں پیٹرول چھڑک کے، وہاں پہ فائرنگ کرتے ہیں، پھر سامنے کھڑے ہو کے ویڈیو بناتے ہیں. وہ ویڈیو میرے پاس پڑی، آپ لگانا چاہیں تو. پھر وہاں پہ یہ ٹک ٹاک وغیرہ بناتے ہیں اور اس ایریے کے اندر نا یہ لوگ اپنا دعویٰ مزید مضبوط کر دیتے ہیں. اب جب بات آئی جی گرفتاری کی، اور ابھی تک یہ جو سارا مسئلہ چل رہا ہے، اقراری گینگ کے علاوہ وہاں پہ اتنا کوئی بڑا فن خان ہے ہی نہیں ہے کہ جو اس طرح اغوا کرے. اور آج چوتھا دن ہے کہ وہ پولیس سے بچ کے رہے. آپ کو پتا ہے کہ سی سی ڈی خود انوالو ہے، اور جو بارڈر ملٹری پولیس ہے وہ بھی اس میں انوالو ہے، لوکل پولیس بھی اس میں انوالو ہے. پھر اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے اس پہ ایکشن لی. اور یہ جو خبر جو بریک ہوئی تھی، جو ویلا منڈا کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے، یہ انہوں نے بریک کی تھی. اچھا، جب وہ خبر کو خود بریک کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے ہمیں، اس کے بعد کچھ ہمارے سورسز ہوتے ہیں، ہم بھی اپنی باتیں جو انکلوڈ کر کے ہم اس پہ ویڈیو بنا لیتے ہیں. پھر اس کے بعد ویلا منڈا کا بیان آتا ہے، نہیں جی ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، کوئی ہم سے بتا نہیں مانگا گیا. اور وہ بولتے ہیں اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں. اب وہ ڈینائی کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ڈینائی اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کا باپ ابھی تک بازیاب نہیں ہوا. چونکہ ان کا باپ اغوا ہے تو ڈاکو جو ان سے پیسے مانگ رہے تھے، ظاہر ہے انہوں نے بولا ہوگا بھائی تم جگہ جگہ ویڈیو بنا رہے ہو، پولیس تم نے بلا لی، ہر جگہ تم چلے گئے، تو دھمکی دی ہوگی. جس کے بعد انہوں نے بولا بھائی جان ویڈیو بھی ڈیلیٹ کرو، اپنے بندوں کو بولا. اور اس کے بعد آگے اس نے ویڈیو بھی بنائی، جی ہمارا کوئی بھی رابطہ نہیں ہے، حالانکہ ان سے بھتہ مانگا گیا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے، ویڈیو لگائی گئی پھر ڈیلیٹ کی گئی، اور یہ نہیں کہ ساتھیوں میں سے لگائی گئی. اچھا، جو پولیٹیشین ان کے ساتھ جڑے ہیں، یہ ہم لوگ بول سکتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کے نمائندے ہیں، جو کہ ساری چیزیں ڈے ون سے ان کے ساتھ کر رہے ہیں. میں نام نہیں لوں گا. وہی ایک انٹرویو دیتے ہیں اور وہی ان چیزوں کو بریک کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ ان سے بھتہ مانگا گیا اور پلس 5 بندے گرفتار ہو چکے. جس دن ان کو اغوا کیا گیا، ویری نیکسٹ ڈے وہیں پہ ایک چوک ہے، وہاں پہ پولیس والوں کا اور کچھ ڈاکوؤں کا آپس میں تبادلہ ہوتا ہے.
जी 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 बिल्कुल ठीक है, फायरिंग का तबादला होता है, खबर चल गई लेकिन खबर खामोशी छा जाती है। ठीक है, पुलिस अपना काम कर रही है, सीसीडी अपना काम कर रही है, उनको पता है कि किसने अगवा की है, सिर्फ चूंकि उनकी अपनी एक पॉलिसी है वो ये चीजें ब्रेक नहीं कर रही। और अब ये केस वेला मुंडा के हाथ से भी निकल के आगे जा चुका है, अब ये इदारों के पास आ गया। अब वो चाहे भी वो बता देने भी जाए वो नहीं दे सकता, क्योंकि अब मरीम नवाज साहिबा ने खुद इस पर एक्शन लिया है और पुलिस खुद इन्वॉल्व है। और अब वेला मुंडा अगर चाहे भी तो वो डील नहीं कर सकता डाकुओं के साथ। कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि फिर अगर ये डील नहीं होती या मतलब कोई इस तरह का कोई मसला हो जाता है बीच में तो कोई फिर जान को खतरा या कोई इस तरह की असल में जान को खतरा डाकुओं के पास तो है, क्योंकि बंदे उन्होंने मारे हुए होते हैं, पैसों के लिए मारते हैं। अब यहाँ पे खतरा इसलिए नहीं है कि उनके बंदे भी गिरफ्तार हैं, अगर उनके बंदे ना गिरफ्तार होते ना तो वो अभी तक कुछ ना कुछ कर देते। दूसरी बात यह कि इनको अगवा किया गया पैसों के लिए, कोई जाती दुश्मनी नहीं है। डाकुओं को खुद भी अंदाजा नहीं था कि हम किस बंदे को उठा रहे हैं, उन्होंने तो पैसा दे के उठाया, शोहरत दे के नहीं उठाया। फिर उसके बाद अब करारी बोला का बयान भी आ जाता है, वो बोलते जी हम तो उसके फैन हैं, हम वेला मुंडा के फैन हैं, हम इसको देखते हैं, हम क्यों उसके बाप को उठाएंगे। और भाई आप तो किसी को नहीं उठाते, आप सिर्फ पैसों के लिए उठाते हो। और उस टाइम पे सबसे ज्यादा पैसा उस एरिया में वेला मुंडा के पास ही है। और ये डाकू क्या करते हैं, कुछ दिन पहले आते हैं, वीडियोस वगैरह वहां पे बनाते हैं, राखी करते हैं, सारी चीजों को देखते हैं और इनका टारगेट होता है वेला मुंडा, कि हमने वेला मुंडा को जो शहजाद है उसको उठाना है। अब सीन ये होता है कि उस दिन सुबह के टाइम ये डाकुओं का प्लान था कि हम लोग शहजाद को उठाएंगे, लेकिन शहजाद चला जाता है उम्रे के लिए। तो फिर लगे हाथों वो क्या करते हैं, आते हैं इसके बाप को उठा के चले जाते हैं। देखें बाइक लेके ये फेंक दिया रास्ते में, गाड़ी भी इनसे लेके जाते हैं, रास्ते में फेंक देते। उन्होंने उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इसके बाप को उठा के उससे बता लेना था, और उनका कोई मकसद भी नहीं है, पैसों के लिए उठाया गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस टाइम जो है वो जिस शख्स ने ये खबर ब्रेक की थी वो जो साजिद लिशारी साहब थे, ठीक है, कि ये जो गैंग है वो इकरारी बुला गैंग है, और ये इकरारी बुला गैंग जो है अब उसको थ्रेट कर रहे हैं। देखें सीन ये, उन्होंने सबसे पहले खबर ब्रेक की कि ये उसमें इन्वॉल्व हैं, साफी है वहां के, बड़ा तगड़े साफी। फिर उन्होंने वीडियो डिलीट कर दी। अच्छा, वीडियो डिलीट भी कर दी जब उन्होंने वीडियो, लेकिन आज फिर उन्होंने वीडियो बना के उसमें इकरारी बोला गैंग को रेफर करके और इदारों से अपील की है कि उनको गिरफ्तार करें। ये उन्हीं साफी ने, क्योंकि वो उनके रडार में तो आ गए, तो अब वो छुपते हैं तो फायदा तो कोई नहीं है। अब उन्हें प्रॉपर इसकी उनके पेज पे जाए, आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें उन्होंने बोला कि डाकुओं को गिरफ्तार किया जाए। क्या समझते हैं कि अभी तक इतना डिले हो चुका है, ये जितना केस जो है ना वो आगे तक चलता जाएगा कि खतरा बढ़ रहा है? नहीं, मेरा ख्याल है कि खतरा कम हो गया। या डील भी नहीं, डील मैंने आपको बोला कि इदारों के पास ये केस चला गया। अब वेला मुंडा डील नहीं कर सकता। वेला मुंडा की ख्वाहिश जरूर होगी शहजाद की कि मैं डील कर लूं, अपने बाप को छुड़ा लूं। देखें पैसा वो कमा लेगा, पैसा कमाना उसके लिए कोई मसला नहीं है, और इस चीज के बाद उसको और फेम मिल गया। अब उसके लिए पैसा कमाना मसला नहीं है, वो करोड़ रुपए दे भी देता है। सर एक गाड़ी है फॉर्च्यूनर आजकल करोड़ रुपए की नहीं आती, करोड़ रुपए दे देता है, लेट्स सपोज वो महीने दो में कमा भी लेगा। लेकिन चूंकि अब इदारे मौजूद है, वेला मुंडा की ये ख्वाहिश है शहजाद की कि किसी तरह मेरा बाप बाजियाब हो, चाहे मैं पैसा दूं चाहे इदारे करें, और उसकी ख्वाहिश इस टाइम पे दिली ख्वाहिश यही होगी कि मैं पैसा दे के अपने बाप को छुड़ा दूं, क्योंकि बाप तो दोबारा नहीं आता, पैसा तो दोबारा आ जाएगा, और पैसा उसके पास काफ़ी है। सीसीडी मौजूद है, पंजाब पुलिस मौजूद है और एजेंसियां मौजूद हैं। ये इकरारी बुला क्या चीज़ है इतनी के भाई जिसका सर ये इकरारी बुला ये वो बंदा है जो बंदों को मारता है, साथ वीडियो भी बनाता है। आपके पास डाटा भी है उनका कि कितने पूरा डेटा है उनके ऊपर, 15-15 FIR है। अब ये इश्तेहारी हैं, अब ये इश्तेहारी इस दफ़ा चढ़ गए सीसीडी के हाथ, इस दफ़ा सीसीडी उनको नहीं छोड़ेगी। सीसीडी के रडार में ये थे। प्रॉब्लम क्या थी, वो एरिया एक पसमानदा इलाका। जी हाँ, सीसीडी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, अभी भी नहीं है कि उस एरिया में जाके वो डाकुओं के साथ वो करे। सीसीडी ने 10 अरब रुपया मांगा था गवर्नमेंट से, पंजाब गवर्नमेंट से, कि हमें दें ताकि हम ये कच्चे का इलाका सारी खाली करें। और उसमें उन्होंने गाड़ियां खरीदनी थी, उसमें उन्होंने नए जवान जो लड़के हैं वो भर्ती करने थे, और प्लस जो उनके अफसरान हैं उनके घर वगैरह बनाने थे, क्योंकि जाहिर बात है दिन रात काम करते हैं तो उनको वो तो चाहिए। तो सीसीडी सब कुछ कर सकती है, लेक ऑफ रिसोर्सेज कम है, अब उनके बढ़ जाएंगे। अब सीसीडी ने पहले लाहौर में हाथ डाला, तीफी बट वाला केस आप देख लें, फिर उसके बाद नेफो में पिस्टल वाला केस देख लें। सीसीडी ने बड़े शहरों में, तमाम बड़े शहरों में ना अपनी दाग बिठा दी। अब उन्होंने साइड एरियाज में, जंगलों में आना था, पर उनके लिए उनको रिसोर्सेज नहीं थे, और क्राइम इतना ज्यादा था कि सीसीडी को बने हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ। अब जब सीसीडी बनी, क्राइम रेशियो इतनी ज्यादा थी कि सीसीडी को टाइम लग गया इन तक आते आते। अगर सीसीडी इन तक आती, पीछे बाकी रह जाते। सीसीडी ने नंबर वाइज इनके पीछे आना था, लेकिन बाय चांस अब उनको इस तरफ आना
पड़ गया है, अब वो इंगेज हो चुके हैं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि ये जो फेम है, गाड़ियां दिखाना, घर दिखाना, ये सब कुछ जो है वेला मुंडा को ले डूबा? सर मैं ये नहीं कहूँगा उसको ले डूबा, असल में ना उसके पास कुछ भी नहीं था। अच्छा, गरीब घर से था, फिर उसने अपना चैनल्स वगैरह बनाए, फिर उन्होंने यही चीज़ दिखानी शुरू की और इसी से पैसा कमाना शुरू किया। एक जो व्लॉगर होता है ना, व्लॉगर, वो एक मुर्गी भी खरीदने जाता है ना, तो वो उसमें दिखाएगा जी हाँ जी मैं मुर्गी खरीदने आ गया, उसका कंटेंट है। अगर ये चीज़ें नहीं दिखाएंगे तो उनको कौन देखेगा? अभी भी इस वाक़े के बाद भी वो नहीं रुकेंगे, वो नई गाड़ी लेंगे दिखाएंगे, नए घर बनाएंगे दिखाएंगे, फिर घर बनाते हुए दिखाएंगे। जिस तरह माजी में उन्होंने ये घर की ईंट तक रखते हुए दिखाया, जी हम घर की ईंट रख रहे हैं, हमारे मजदूर काम कर रहे हैं। इसी तरह सोलर लगवा रहे हैं हम, ये कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। कंटेंट है। रजब भट्ट का भी यही कंटेंट है। अब रजब भट्ट भी ये चीजें दिखाता है, इसी वजह से तो आज मुल्क से बाहर है। डकी क्यों है? डकी ने नया घर लिया, रिडार में आ गया। सिस्टोल जी ने नया घर लिया, रिडार में आ गया। जुल्करनैन, कंवल, ये लोग नया घर इन्होंने लिया, अब ये भी रडार में आ चुके हैं। पता चल चुका है सबको कि ये जो यूट्यूबर्स हैं पैसे कमाते हैं ठीक ठाक, अब इन पे इसलिए हाथ डाला जा रहा है। उस्मान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और मैं आपको एक बात बताता जाऊं कि जो भी खबर उस्मान साहब ने ब्रेक की थी, ये खबर जो है वो उनके साथियों ने पहले लगाई थी, उसके बाद फिर रिमूव की सर हमें ना उनके जो शहजाद है उन्हीं लोगों ने पहले खबर ब्रेक की। एग्जैक्टली ऐसा ही है, ठीक और है, इस चीज का प्रूफ भी है अभी बिल्कुल, भी। उसका प्रूफ भी पड़ा है, वीडियोस भी पड़ी। अब होता क्या है, खबर जैसी ब्रेक करते हैं, शहजाद ने नहीं ब्रेक की, शहजाद के भाई भी इसमें शामिल हैं, उसके बाकी जो हैं, जो हल्का बाब है खासतौर पे, जो लोग उनको सपोर्ट करें वो इसमें शामिल हैं। शहजाद को जब पता चलता है ये सियाना बनता है, वो कहता है जी मेरे बाप का मामला अच्छा, है। एक मादरत मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जो शहजाद है ना वो थोड़ा सा सियाना है, जो इसका छोटा भाई रिजवान है ना, वो तो मुझे समझ नहीं आता, वो ऐसी ऐसी बात कर जाता है, कभी इदारों के खिलाफ भी चला जाता है, कभी क्या, ये क्या चीज है? ये सब कुछ कमाया बनाया शहजाद का है, वो अपने भाइयों को साथ लेके चल रहा है, वो घर का बड़ा है। जो घर का बड़ा है वो समझदार होते हैं, बाकी बेचारे इतने समझदार नहीं है, उनको सोच के थोड़ा बोलना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं कि ये जो है वेला मुंडा के वालिद साहब को जो है अगवा किया गया, ये ज्यादती है, सरेआम ज्यादती है? सर ये बहुत बड़ी ज्यादती है। और वो एक यूट्यूबर था, गरीब घर से ऊपर उठता है, फिर बाप देखो जिस तरह माएँ सांझी हैं तो बाप भी सांझे होते हैं। अब उस बेचारे के बाप को अगवा किया गया, आज बेचारा उम्रा करने गया, उम्रा भी उससे सही तरह ना हो सका, फिर वापस आता है, इन परेशानियों में वो पड़ गया है। लेकिन ये देखें कि हम सब के लिए कंटेंट है, लेकिन उसका बाप है, ऐसा ही है। उसको इस टाइम पे बाप चाहिए। इस बाप के लिए वो करोड़ रुपया भी दे देगा, बिल्कुल। वो इस टाइम पे उसका माइंड यही होगा मैं पैसे दे दूं, मेरा बाप किसी तरह वापस आ जाए। लेकिन मसला ये है कि चीज़ उसके हाथ से निकल चुकी है, और हम भी दुआ गो कि अल्लाह करे उसका बाप खैर खैरियत से वापस आ जाए। अगर आज उसके बाप को कुछ होता है तो जो बाकी यूट्यूबर्स हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम लोग हैं, इसका मतलब है कि हम लोग भी सेफ नहीं है। हम पहले भी ये चीज़ें देख चुके हैं, अभी भी देख रहे हैं, और हम लोग कहेंगे कि अल्लाह करे कि उसका बाप खैर खैरियत से वापस आ जाए। पैसा भी कमाया जा सकता है, सब कुछ हो सकता है, बाप वापस एक दफ़ा गया नहीं आ सकता। हम इस चीज़ को समझते हैं, और अल्लाह करे कि खैर खैरियत से उसका बाप वापस आ जाए। उस्मान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और पोस्ट पाकिस्तान को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस तरह की वीडियोस मैं आपको देता रहूँगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।